Hi everyone, this is Divya Tamarkar, and today we are going to start our new chapter, chapter number 8, Reaching Grandmother's House. This is a related chapter from our previous chapter, chapter number 6 and 7, where Omna, a girl, she was going a vacation in their grandmother house. Her grandmother live in Kerala, so she started her journey from Ahmedabad by train. She write down all the things in diary for her friend. Her friend name is Radha. By some circumstances, she met accident and get fracture. That's why she is not able to come in journey with Omna. So Omna start writing a diary and write down all the things which she saw during the journey, all about the things which she experienced also, and she saw in the platform, in the outside of the station, outside of the window, and all the things. She also write down the experience about the bridge, the railway bridge, which is ओनली मेड फ्रॉम द फॉर द ट्रेन्स. वो वाली ब्रिजेस जो सिर्फ ट्रेन्स के चलने के लिए बनाई जाती है, वो उस ब्रिज के बारे में उसने एक्सपीरियंस जो किया था. एक अलग टाइप की साउंड उसमें से निकलती थी. ये सारी चीज़ें उसमें उसने एक्सपीरियंस की. उसके बाद में उसने टनल के बारे में पढ़ लिखा था. तो जो भी चीज़ें उसने अपने पूरे इंटायर जर्नी में, ट्रेन जर्नी में उसने जो एक्सपीरियंस किया, वो सब उसने उस डायरी में लिखी थी. Now in this chapter, Omna reached her grandmother house. So let's start. All we know that Omna start her journey on 16 May. Now it's 17 May. Today's date is 17 May in the Omna's diary. Okay. So after our long train journey, we reached Kottayam in the night. Veliamma's house was not far from the station. Again I have to read. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. Veliamma's house was not far from the station. We had to take 2 auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. पूरी ट्रेन जर्नी जो बहुत लंबी थी, जो ऑलमोस्ट 2 डेज़ की ट्रेन जर्नी थी, वो जर्नी के बाद वो आखिरकार कोट्टयम के स्टेशन पहुंच गए. इन कोट्टयम ओमनास वेलियम्मा लिव. What is the meaning of Veliamma? In Malayalam, mother's elder sister called Veliamma. मलयालम में मम्मी की जो बड़ी बहन होती है उसे कहते हैं वेलियम्मा. वेलियम्मा के हाउस वो वहाँ पे पहुँचे. क्योंकि उनके पास बहुत सारा लगेज था, तो उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा करी. यू सॉ इन दिस पिक्चर दे हायर 2 ऑटो रिक्शास. एंड वो जब घर पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. तो उसने एक बाथ लिया, मतलब वो नहाई और वो सो गई. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Veliamma's family also come with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. अब वो इतनी थकी हुई थी कि जब मॉर्निंग में जब उसकी अम्मा ने उसको जगाया तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो जैसे अभी सोई थी. समटाइम इट्स ऑल्सो हैपन विद मी. होता है कि नहीं? अगर होता है तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिखेंगे कि जब आप कभी सोते हो तो
और सोकर जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अभी ही तो सोए थे। तो ऐसा सेम थिंग्स हुआ ओमना के साथ, और जब उसकी मॉम ने उसको उठाया तो उसे लगा कि वो तो अभी ही सोई हुई थी। सो वो जल्द से जल्द रेडी हुई, वो वहाँ से बस स्टैंड पहुँचे और वेलियम्मा की फैमिली भी ओमना की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए गई। सो वो लोग टोटल 10 पीपल्स हो गए थे और उनके पास बहुत सारा लगेज हो गया था। So in our previous chapter we learn about the ticket collector, because we started our journey in the train. We are travel in the train, that's why we made ticket collector. Now we are traveling by the bus, that's why we met bus conductor. What is the work of bus conductor? Did you know? So you have to give me the answer in the comment section that what is the main work of bus conductor. बस कंडक्टर का काम क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. So the bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. We managed to get seats. As it went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. My legs were stiff. I could hardly stand. जब बस कंडक्टर आया तो अप्पा ने उससे सभी के लिए टिकट्स खरीदी और सब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ गए. जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, दूसरे स्टॉप्स में जाती गई, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती गई, लोग वहाँ आते गए एंड दे हैव टू शेयर द सीट्स. ओमना एंड हर फैमिली ऑल्सो शेयर देयर सीट्स. आफ्टर ए लॉन्ग राइड बस रीच द लास्ट स्टॉप. अब ओमना बहुत खुश थी क्योंकि बस से अब उतरना है और उसके पैर जो थे वो स्टीफ मतलब अकड़ गए थे. वो बहुत हार्डली, बहुत मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमुअम्मा विलेज, बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. दैट इज वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड. अब उसको लगा कि फाइनली वो पहुंच गई अमुअम्मा के विलेज, बट नहीं, अभी बहुत सारा ट्रैवल और बाकी था. बस ने उनको वाटर के पानी के किनारे पे छोड़ दिया. उसकी अम्मा ने पॉइंट किया कि देखो वो जगह है जहाँ से हम जाने वाले हैं. बट ओमना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि पूरे पानी वाले प्लेस से वो कैसे जाएंगे. वहाँ पे पूरा पानी ही पानी था, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि वो पानी वाले प्लेस से कैसे जाएंगे. आफ्टर सम टाइम जस्ट देन आई सॉ ए बोट कमिंग देयर इज इन द फेरी. अम्मा सेड immediately. A big crowd of people started getting off. That are school children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ पे एक बोट आई. उस बोट को फेरी कहते हैं. What is the meaning of ferry? Ferry is a small type of boat where they carry luggage. Even also big ferry carry the big vehicles also. So ferry जो होती है वो पीपल्स और उनके सामान, और इवन बड़ी जो फेरी होती है उसमें गाड़ियाँ भी, रिवर के या पानी का कोई भी एक वाटर बॉडीज़ होती है, या लेक रिवर हो गया, या पानी का जो रास्ता होता है जिससे हमको पार करके जाना है, वो उसको पार करने के लिए फेरी का यूज़ किया जाता है. तो जैसे ही फेरी आई तो फेरी के अंदर से बहुत सारी भीड़ बाहर निकली, जिसमें कि स्कूल के बच्चे भी थे, कुछ आदमी थे, औरत थे, जो अपने अपने लगेज के साथ आए थे. एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द लगेज. मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था द मीनिंग ऑफ द लगेज. सो यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ लगेज इन द कमेंट सेक्शन. 2 चीज़ें आपको बतानी है. पहला लगेज, दूसरा अबाउट बस कंडक्टर.
सो अम्मा ने उसको बताया कि फेरी का यूज़ किया जाता है पानी के उस पार जाने के लिए. So as soon as ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. बहुत जल्दी जब उस साइड के लोग जब आ रहे थे तो वो फेरी जब उतर रहे थे तो फिर वो फेरी खाली हो गई. फिर अपने ओमना की साइड से लोग उसमें चढ़ने लगे. फिर सभी लोगों ने उसमें उनका फेयर दिया. फेयर मतलब किराया होता है. और जैसे ही सब भर गए फेरी चलने लगी. दैट इज़ द फेरी. ये फेरी है. सो ओमना मैनेज टू गेट a place that start along the railing. I saw the rippling of still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There was row of coconut tree on the bank of river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing along the bank and working. जैसे ही फेरी स्टार्ट हुई ओमना ने अपने आप को एक जगह पे मैनेज किया. एंड दे सी मैनी कोकोनट ट्री ऑफ द बैंक ऑफ रिवर. पर्सन पीपल्स दे आर फिशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एंड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद द रिवर. Just before the sun dropped into the water, the ferry reached the island and stopped. It was time for us to get off. At last, we reached Amma place. What a long and interesting journey it has been. इससे पहले कि सन उस वाटर में जाकर छिप जाता या डूब जाता, फेरी उस आइसलैंड पे पहुंच गई जहाँ पे अम्मा का प्लेस था. अब ये एक्चुअल टाइम था कि उनकी जर्नी वहाँ पे ख़त्म हो रही थी और उनको वहाँ से हटना था. और आखिरकार एट द लास्ट दे ऑल रीच्ड अम्मा प्लेस. So all this journey which is starting by the Ahmedabad and reaching their last destination Kerala, it was a very exciteful journey, different experience. Omna had different experience about the train journey, about the tunnel, about the level crossing, about the different types of peoples who are travel with them. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उनके थे ओमना के. तो ये सारा उसने अपनी डायरी में लिखा था और डायरी के कुछ पेजेस हमने अपने चैप्टर 6, 7, 8 में कंप्लीट किए. वो डायरी जो कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड राधा के लिए लिख रही थी, क्योंकि राधा का एक्सीडेंट हो चुका था, उसको फ्रैक्चर हो चुका था, तो वो नहीं जा सकती थी उस जर्नी पे. तो उसको उस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ओमना स्टार्टिंग टू राइट अ डायरी. सो हियर ओमना रीच्ड हर अम्मा प्लेस. जैसे हमने पहले पढ़ा था अबाउट वेलियम्मा. इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर आर कॉल्ड वेलियम्मा. सेम एज दैट इन मलयालम mother called Amma, which we called Dadi. In Malayalam they are said Amma. Okay, मलयालम में दादी को अम्मा कहते हैं. सो ये सारी जर्नी के बारे में बताया गया है. नाउ हियर पेज नंबर 62. The book exercise is your homework. That Omna traveled by different kind of transport after she got down from the train. Can you remember what this were? This is the homework for you. You have do it by yourself. That first question, ओमना ने ट्रैवल किया था बहुत सारे
व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट से जब वो ट्रेन से उतरने के बाद उसने अम्मू अम्मा के घर पहुंचने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल, उन सब व्हीकल्स में से आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, आपने जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओमना ने यूज़ किए थे उसमें से आपने कितने यूज़ किए, ये सेकेंड वाले क्वेश्चंस में लिखेंगे। और सबसे ज़्यादा आपने कौन सी वाले में एंजॉय किया ये आप इसमें लिखेंगे। सो ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मैनी हावर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्मू अम्मा पैलेस। ओमना ने 16 मई को अपनी जर्नी शुरू की थी अम्मू अम्मा के अम्मू अम्मा के प्लेस में पहुंचने के लिए उसने कितने हावर ट्रैवल किया ये आपको बताना है। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। इसी जिस तरीके से ओमना ने एक बहुत लंबी जर्नी की थी वैसे क्या आप भी गए हैं और आप कहाँ गए हैं इसके बारे में आपको बाय योर सेल्फ लिखना है। एंड नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। आप जब एक लॉन्ग सी जर्नी पे गए थे और जहाँ भी गए थे उसमें आपने कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट यूज़ किए उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है आपको। सो दिस इज़ द सम क्वेश्चन फॉर you have to done by yourself। and look at this picture, this is a railway ticket। okay, so रेलवे टिकट जो होता है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशंस होते हैं। लाइक एज यू सी आई हैव टू पॉइंट आउट दिस इज़ अ डेट, ये डेट होता है कि कौन सी डेट पे आप जर्नी कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पे लिखाता है कि आप कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन जा रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये कोच नंबर होता है जो कि ट्रेन के अंदर होते हैं। ये सीट और बर्थ होते हैं, आपकी सीट नंबर क्या है और बर्थ कौन सा है। LB मतलब लोअर बर्थ, SL मतलब स्लीपर लोअर एंड UB मतलब अपर बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर दिखाता है, मेल फीमेल मेल, देन इट इज़ द एज। और ये फिर फेयर मतलब कितना किराया लगा ये आपका पता चलता है। ओके, और ये यहाँ पे ट्रेन का नाम है अवध एक्सप्रेस। आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं ये अवध एक्सप्रेस के बारे में बताता है। एंड दिस इज़ द PNR नंबर जिससे पता चलता है कि आपके ट्रेन का स्टेटस क्या है। अगर आप PNR नंबर एक साइट आती है उस पर अगर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेन कौन से स्टेशन से निकली है। एंड दिस इज़ द ट्रेन नंबर। एंड ऑल्सो हियर मेंशन अबाउट द एडल्ट एंड चाइल्ड नंबर। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 एडल्ट यहाँ पे जर्नी करने वाले हैं और एक चाइल्ड। सो ऑल दिस थिंग्स आर राइट डाउन इन द railway ticket। this is the PNR number, this is the train number, it is the date और ये कितने किलोमीटर्स हैं एंड एडल्ट्स की संख्या, चाइल्ड है तो चाइल्ड, देन इट इज़ द प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, देन कोच, सीट बर्थ एंड देन जेंडर, एज एंड दिस इज़ द फेयर। सो ये सब आपको इस टिकट्स में दिया जा चुका है पेज नंबर 63। और ये यहाँ होमवर्क है आपको उस टिकट्स में से देख के ट्रेन नंबर लिखना है, डेट ऑफ जर्नी, बर्थ नंबर और द कॉस्ट ऑफ टिकट। सो इट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क, you have to write down by yourself. Okay, and here a railway timetable. What is railway timetable? A railway timetable gives details about the route of every train, the station along the route, what time the train will reach and leave the station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. सो रेलवे टाइम टेबल वो होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स की, इवन हर ट्रेन की, कि वो ट्रेन कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कितने किलोमीटर्स की होती है, कौन से टाइम पे वो कौन से स्टेशन पे आती है, कब वो स्टेशन को छोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो रेलवे टाइम टेबल है वो रेलवे स्टेशन से भी ख़रीद सकते हैं।
Here is the train details of Omna's train. Omna's train name is Nagarkol Express. It is started from the Gandhi Dham and in the नागरकोल. बट क्योंकि ओमना की जो वेलियम्मा थी वो कोट्टयम में रहती थी, तो उन्होंने कौन से स्टेशन में उतर गए थे? कोट्टयम में. और स्टेशन रेल में मतलब ट्रेन में उनको 2 फ्रेंड मिले थे, सुनील और अन. वो उतरे थे रेल स्टेशन नंबर 9 कोशकी कोडे में. सो दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट द ओमनास train. So here we will complete our chapter number 8. When you watch the video, you have to like the video and subscribe my channel for the new video. Thanks for watching.